हमारी हो गई थी। ठीक है, ये चैप्टर 14 जो है हमारा, हाँ सही चल रहा है। ये जो चैप्टर 14 है, दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ चैप्टर 13। In chapter 13, the most important thing that we came to know was about the stationarity of data. The point was simple. If we are using time series data, we have to have stationary data before running a regression. And if we don't take into account the stationarity of the time series data, and if we run a regression over non-stationary time series, the results would be invalid and meaningless. In fact, the whole regression would be meaningless. Meaningless regression is known as spurious regression in econometrics, and we need to avoid spurious regression. One easy indicator of spurious regression was to have a larger R square than the DW statistics in our regression analysis. हमने ये देख लिया। हम इस chapter 14 का भी है ना, we have done one part of it already. We have already discussed co-integration. We have done it and we have studied, we have understood that spurious regression is not always meaningless. There is a case when spurious regression does have a meaning, and that is the case of co-integration. Sometimes two variables individually are in a state of disequilibrium, but their relationship is able to achieve equilibrium in the long run. This is known as long run equilibrium, which is not shown in one time period, which is not achieved at current time period, but there exists an equilibrium, a strong relationship between two variables, and that relationship can be confirmed during the long run. This is known as co-integration. हमने इसको पढ़ा था। और one easy indication of co-integration was simple. You have to do what you were supposed to do. You were supposed to run a regression of non-stationary data, and then you were supposed to generate the error term of the spurious regression, the regression which apparently is looking like a spurious regression. You were supposed to run the regression of non-stationary data. Then step 2, you were supposed to generate the error term. Step 3, you were supposed to apply EDF test on the error term. And the error term, in order to show co-integration between two variables, two non-stationary variables, the error term of the regression is supposed to be stationary at level. Because you don't have to consider difference here. Without any lag and without any drift and time trend. आसान कर दूं तो कोइंटीग्रेशन तो हमें समझ आ रही है क्या है, अच्छी मिसालें दी थी मैंने, अभी 2-3 दफा आज इत्तेफाक से रिपीट कर चुका। अब पॉइंट ये है कि इसको इकोनोमेट्रिक्स में कैसे करते हैं, अपना ईव्यूज में, वो बता रहा हूँ। आप नॉन स्टेशनरी डेटा की ओएलएस रिग्रेशन रन करेंगे, उसकी एरर टर्म जनरेट करेंगे, क्योंकि अगर कोइंटीग्रेशन मौजूद है तो दो वेरिएबल या दो टाइम सीरीज तो नॉन स्टेशनरी होंगी एट लेवल, लेकिन उनकी रिलेशनशिप या उनकी रिग्रेशन की जो एरर है ना, उनकी जो रिलेशनशिप है, जो एरर टर्म प्योर रैंडम होगी, स्टोकेस्टिक होगी। वो जो एरर टर्म है उसके रैंडम यानी होने को हम इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो स्टेशनरी होगी जो है ओरिजिनल अपनी हालत में, यानी आपने लैग भी नहीं लेने, आपने ट्रेंड भी नहीं लेना, आपने इंटरसेप्ट भी नहीं लेना, एडीएफ टेस्ट की बात करूं, और उसको प्योर ये चेक करना है। अगर एरर टर्म किसी नॉन स्टेशनरी डेटा की रिग्रेशन की स्टेशनरी आ जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक, पहले इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले ये जो है ना, मैंने डेटा डाला हुआ है, तो बल्कि ये रहा, शायद आपको दिख रहा हो, ये डेटा आ गया आपके सामने। यस सर। जी, वही काम कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। ये पर्सनल, ये पिछली क्लास में पता नहीं दिखाया था या नहीं, आपको दिखाया था ना, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, पर ये अपना आपकी वो पूरा ही कॉपी करना था ना, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। डिकी फुलर तक कर लिया था हमने, कर लिया था ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, विच इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल। सीओडी सेल के अंदर इनकी लॉग फॉर्म है और ये टाइम वेरिएबल है। आप में से किसी को याद होगा कि ये अपना ये जो है
ये कब से कब तक का था? मेरा ख्याल है ये 1970 फर्स्ट क्वार्टर से, अगर मुझे सही याद है, ये 2008 ये 90 हाँ 2008 तक का था ना? जी सर। जी जी, तो मैं थोड़ा सा ई व्यूज ओपन कर लूँ, फिर हम इसको जो है जी, ई व्यूज विजिबल है आपके सामने? यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू। चलें वही काम करते हैं। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल, अ न्यू वर्क फाइल। डेटा है बेसिकली द क्वार्टरली डेटा। टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1970 फर्स्ट क्वार्टर टू 2008 fourth quarter. We paste data here. We don't import data. We normally what जो मैंने आपको सिखाया है, we normally copy and paste data. इसमें थोड़ा फायदा ये है कि जो हम चाहते हैं सिर्फ वही हम करेंगे, बाकी चीजें छोड़ दें। अच्छा, मैंने इसको कॉपी कर दिया। आपको तो ये अभी रिव्यूज की शीट ही दिख रही है ना? यस सर। ओके, चलो ये आ गया, ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब मैंने करना ये है कि ओएलएस रन करनी है वेयर पर्सनल कंजम्पशन, क्योंकि लॉग में ले लेते हैं। log of personal consumption expenditure is my dependent variable, intercept and independent variable is only one, PDI। मैंने ls लिखा, इन सबको कॉपी किया और यहाँ ऐड। ये मेरी रिग्रेशन आ गई, ठीक है। अभी जो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन है, इसके अंदर देखें आर स्क्वायर 0.997 है और जो डी डब्ल्यू वैल्यू है वो 0.36 है। तो अपना और टाइम सीरीज डेटा है, और हमने ये चैप्टर ये पहले आपको करके दिखाया था कि ये लेवल पर दोनों वेरिएबल नॉन स्टेशनरी हैं, पिछली क्लास में करके बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये खतरा है कि ये स्पूरियस रिग्रेशन है। बज़ाहिर तो ये उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि वी हैव टू चेक वेदर द error term of the non stationary regression is stationary or not। तो पहले तो मुझे अब एरर टर्म जनरेट करनी होगी जनाब इसकी, ठीक है। एरर टर्म मैंने जनरेट कर दी, इसकी एक ही कमांड है हमेशा कोई भी चैप्टर। अभी जो एरर टर्म हमारी जनरेट हो गई है, अब मैं इसमें चला जाऊंगा, ठीक है ना। इस एरर टर्म को ओपन करूंगा। नाउ आई हैव टू चेक वेदर इट इज स्टेशनरी और नॉट, है ना। आई विल यूज द व्यू ऑप्शन, देन यूनिट रूट, लेवल बिल्कुल सही है, नहीं इंटरसेप्ट नहीं लेना, कोई नहीं लेना, लेकिन नन का ऑप्शन, और लैग भी इसके आपने नहीं कंसीडर करना। ओके किया। एडीएफ टेस्ट आप सबको आता है, प्रोबेबिलिटी बता रही है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड इट मींस दैट वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द एरर हैज अ यूनिट रूट, or in other words we reject that the time series, that the error term is non-stationary. Error term is found to be stationary, and it means that this regression is not spurious. It might have a meaning, and what is that meaning? It means that we have co-integration between between the two variables. Those two variables are non-stationary in the level form, but there is a long run equilibrium between them, ठीक है। ये तो हम पीछे कर चुके हैं, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा और आपको याद दिलाने के लिए हम चेक कर लेते हैं मैं क्या क्या रहा हूँ। देखें, ये है हमारा लॉग ऑफ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी स्टेशनरिटी चेक कर रहा हूँ, व्यू में गया, लेवल पे है, ट्रेंड एंड इंटरसेप्ट पर है, ठीक है ना। लग्स 0 रखें और हम इसको चेक करते हैं। ओके किया,
ये आ गया जनाब, ये प्रोबेबिलिटी देखें 0.88 आ रही है और ये बता रही है कि ये नॉन स्टेशनरी, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसी आप ध्यान में रख लें। अगर फिर हम इस पर यूनिट रूट लगाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल रिमेन अनचेंज, बस जो लेवल है वो फर्स्ट रेफरेंस पे जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बता रही है कि ये स्टेशनरी हो गया, तो पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो लेवल पर नॉन स्टेशनरी और फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी। फिर हम आए पर्सनल सर ये इससे डिस्पोजेबल। पहले आपने एक जी मैं दोबारा देखें इसी अपना, अब मैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पे सेम दोबारा काम कर बोलिए रहा सर। हूँ। हाँ बिल्कुल सेम काम कर रहा हूँ। व्यू में गया, व्यू रूट में गया, पहले लेवल पे चेक करेंगे, ट्रेंड इन इंटरसेप्ट रखेंगे, लेग्स हटा दिया करें, ठीक है। लेग्स की एडीएफ में जब तक पता ना हो जरूरत नहीं। ओके है ना, ओके सॉरी, इंटर किया, प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.065। ये 10% पे सिग्निफिकेंट आ रहा है लेकिन 5% पे इनसिग्निफिकेंट। अगर हम 5% या पिछला वाला 1% पे सिग्निफिकेंट था ना, अब हम अगर 5% या 1% अपना बेंचमार्क बनाएं तो ये बेसिकली इनसिग्निफिकेंट है। वापस व्यू में गया, यू रूट में गया, अब मैं फर्स्ट रेफरेंस पे गया, हर चीज जैसी की वैसी है। इस दफा ओके किया तो जनाब वाली ये जो है हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 000 आ गई है, यानी ये भी फर्स्ट रेफरेंस में स्टेशनरी, ठीक है जी। अच्छा अब मैं जरा नया तो इसमें जब हम एडीएफ रन करें तो इसमें लैग्स रखेंगे हम या नहीं रखेंगे लैग्स? नहीं एडीएफ पे नहीं सेम रखें, क्वेश्चन। एडीएफ पे ना रखें। वैसे नॉर्मली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फर्क पड़े आपके स्टेशनरी आ रहा हो लेवल पे तो फिर 0 लैग पे देखिए, आमतौर पे वही आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा मैंने एक कोइंटीग्रेशन के ग्राफ करके दिखाया था इन दो वेरिएबल का, अभी तक हम रिपीट में ही हैं, तो वो जरूरत है या सही है? वो मैंने दिखाया था ना, वो दोनों एक साथ मूव कर रहे थे, याद है आप लोगों को या नहीं? तो सेटर वाला जी वो कोइंटीग्रेशन के ग्राफ ना, वो दोनों वेरिएबल जो कंजम्पशन और इनकम थे वो जी साइड बाई है ना। स्कैटर डायग्राम आपने दिखाई। हाँ वो टीचर आपने दिखाया था कि ये पैरेलल है और इसमें रिदम नजर आ रहा है, तो जी डायरेक्ट जी 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 बिल्कुल। सर आपने वो डॉग और उसके ओनर की एग्जांपल दी थी। जी बहुत अच्छा, आप लोगों को तो याद है, तो फिर आगे चलते हैं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा अब ये देखें, ये जो हमारे शेयर है, अब ये स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? जी सर ओके जी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम कर चुके हैं ये, और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बल्कि इसको छोड़ें, ये स्लाइड कितनी दफा। हाँ अब देखें, अब ये जो मैंने आपको बताया कि अगर एरर टर्म ऑफ द नॉन स्टेशनरी डेटा रिग्रेशन इज found to be stationary at level without intercept, without trend, at zero lag, so we can confer that there exists co-integration. लेकिन एंजिल और ग्रेंजर दो अपना स्टैटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, बेसिकली स्टैटिशियन थे, और इन्होंने एक टेक्निक हमें दी, एक 2 स्टेप टेक्निक ना, 2 स्टेप टेक्निक टू डिटेक्ट को-इंटीग्रेशन। और ये बाईवेरिएट टेक्निक है जो आज भी पूरी दुनिया, 1987 या 83 की है मेरा ख्याल है, 87, और लेकिन ये आज भी दुनिया में चलती है। अगर आप 2 वेरिएबल पे काम कर रहे हैं टाइम सीरीज पे, बाई वेरिएबल 2 वेरिएबल ना, तो ये आज भी एक्सेप्टेबल है, बल्कि ऑर्डर ऑफ द डे है मैं कह सकता हूँ, आप इसको बड़े मजे से यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ये है ना एंजिल ग्रेंजर टेक्निक पर। एंजिल ग्रेंजर टेक्निक जो है ये बेसिकली, अच्छा एक मिनट ठहरिएगा जरा, अच्छा ये मजे की बात है कि इसमें वो है नहीं, आपको थोड़ा पेन कॉपी उठाना पड़ेगा, स्लाइड इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कुछ डाल दूंगा टाइप करके ना, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, मैं डालता हूँ। लेकिन जरा लिखिए, को-इंटीग्रेशन टेक्निक के 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 ENG टेक्निक, को इंटीग्रेशन टेक्निक, एंजिल एंड ग्रेंजर, ठीक है, इसके लिखिएगा जरा। देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, रन OLS रिग्रेशन ऑन नॉन स्टेशनरी डेटा, जो हमने किया काम ना, रन OLS रिग्रेशन ओवर नॉन स्टेशनरी डेटा एंड ऑब्टेन इट्स और एरर टर्म। नॉन स्टेशनरी डेटा की OLS रिग्रेशन रन करें, नॉन स्टेशनरी डेटा की OLS रिग्रेशन रन करें
और इसकी एरर टर्म जो है जनरेट करना। स्टेप नंबर 1, you have to apply ADF test on error जो है on error term, जैसे कि हमने किया ना, ये स्टेप नंबर 1 में चल रहा है। सर स्टेप नंबर 1 प्लीज दोबारा रिपीट कर देंगे। Run OLS regression over non-stationary data and generate its error term। एक पॉइंट हो गया इसमें, स्टेप 1 का एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी है स्टेप 1 में, दिस इज 1 पॉइंट। ठीक है, यस सर। अच्छा इसी में लिखें एंड अप्लाई ADF टेस्ट on error term to check whether it is stationary or not, and apply ADF test on error term and keep in mind the condition: no intercept, no time trend, no lag, and it should be at level। कंडीशन क्या बताइए? नो इंटरसेप्ट, no intercept, सर no कंडीशन trend, दोबारा बताइएगा। no intercept, no trend, no lag, लेवल पे होनी चाहिए। नॉट फ्रेंड, नो इंटरसेप्ट, नो लैग, नो एंड एट लेवल फॉर। ठीक है, ये आगे चले जी सर। यस है ना। अच्छा इफ ये स्टेप 1 में चलते जाएं। इफ फाउंड स्टेशनरी it indicates co-integration। If error term is found stationary, it indicates co-integration। सर नहीं समझ आई। If error term is, देखा ना आपने लिखा है कि apply ADF test on error term, तो stationarity चेक करेंगे ना। जी जी आगे लिखें जी। if error term is found to be stationary, it indicates the existence of co-integration। ठीक है सर। अगर एरर टर्म स्टेशनरी है तो ये कोइंटीग्रेशन की निशानदेही करेगा। ये अभी मीटिंग हमारी अगली खत्म होगी ना, मैं अगली शुरू होने में मैं आपको 5-7 मिनट का गैप दूंगा, मैं उसके अंदर ये आपको स्लाइड पे कर दूंगा, कोशिश करके। ठीक है सर। अच्छा ये हो गया स्टेप 1। अब समझे जरा, अब स्टेप 2 लिखने से पहले जो है ना मेरा पॉइंट समझे। Two variables are non-stationary and they are in disequilibrium in the short run, in one time period, two time period, but they have an equilibrium among between them in the long run। अब समझें, 2020 में दो वेरिएबल नॉन स्टेशनरी हैं और डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन इनमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक पीरियड में तो नहीं, मगर कुछ पीरियड में ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो आज अगर ये डिसइक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि, और कुछ अरसे में ये इक्विलिब्रियम ले लेगा, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान हर पीरियड में डिसइक्विलिब्रियम थोड़ा थोड़ा रिमूव होता जाता होगा। क्या ख्याल है? देखें दो वेरिएबल आज डिसइक्विलिब्रियम है, मगर इनमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। लॉन्ग रन बहुत सारे शॉर्ट टर्म का जो है सम होता है। तो मतलब है हर पीरियड में इस डिसइक्विलिब्रियम में कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है ना, वेरिएबल आर मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्या ख्याल है? नहीं भाई? हेलो जी सर। है ना। अब देखें, अगर इस वक्त डिसइक्विलिब्रियम है, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम है, तो इन इकोनोमेट्रिक्स देयर हैज टू बी सम एडजस्टमेंट ड्यूरिंग वन शॉर्ट टर्म। अब वो जो एडजस्टमेंट है उसका होना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए हमें स्टेप 2 करते हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ECM, एरर करेक्शन मॉडल। लिखें हम स्टेप 2 की हेडिंग, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ECM, एरर करेक्शन मॉडल।
सही है, लिख लिया? जी सर स्टेप 1 की कोई हेडिंग थी? स्टेप 1 की मैंने कोई हेडिंग नहीं लिखवाई थी। अच्छा, अब आपको वजह समझ में आ गई कि व्हाई डू वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ईसीएम? जी सर। सर अगर कोई दो वेरिएबल्स में शॉर्ट रन में रिलेशनशिप नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म में दे हैव अ रिलेशनशिप, दे हैव एन इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में हम एरर करेक्शन मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जी, इसलिए कि अगर शॉर्ट रन में अभी डिसइक्विलिब्रियम है बट देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन, तो एवरी शॉर्ट टर्म देयर शुड बी सम एडजस्टमेंट, देयर शुड बी अ रिडक्शन इन द एक्सटेंट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। हाँ, ठीक है ना? अब देखिए जो एरर करेक्शन मैकेनिज्म है ये है क्या? ये जो है ना, ये अपना ये डिफरेंस जो है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आपको मैं रिग्रेशन पढ़ाता आया हूँ ना, ये जो लेवल के अंदर हम लिखते हैं वेरिएबल्स को, ये लॉन्ग रन जो कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने जो रिग्रेशन रन की थी, log ऑफ PCE इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log ऑफ PDI, ये बेसिकली लॉन्ग रन जो है अपना जो कोफिशिएंट है। शॉर्ट रन कोफिशिएंट डिफरेंस में होते हैं, याद रखिएगा। तो जो एरर करेक्शन मॉडल है ये है क्या? कोई स्टेप 1 में कोई इंटीग्रेशन जो है वो अपना कंफर्म हो गई है। तो अब अगर कोई इंटीग्रेशन है तो अब एरर करेक्शन क्या करेगा? स्टेप 2 एरर करेक्शन शॉर्ट रन डायनामिक्स को जो है वो कैप्चर करेगा इनकॉर्पोरेटिंग लॉन्ग रन इंफॉर्मेशन। एक बल्कि ये दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, यू शुड टेक इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। एरर करेक्शन मॉडल इनकॉर्पोरेट्स error correction model explains short run dynamics. Error correction model incorporates short run dynamics incorporating long run information. दोबारा रिपीट कीजिएगा। Error correction model explains short run dynamics incorporating long run information. थैंक यू। अच्छा जी, अब ये बनेगी कैसे? शॉर्ट रन मैंने बताया कि निशानी है डिफरेंस, तो अब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस में ले लूंगा। जो भी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जैसे एरर करेक्शन मॉडल एक्सप्लेन्स शॉर्ट रन डायनामिक्स इनकॉर्पोरेटिंग लॉन्ग रन इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं आपको ये चाहता हूँ कि अब ये क्योंकि मेरे पास 3 मिनट है ना, इस मीटिंग के खत्म होने में 3 मिनट, तो मैं चाहता हूँ कि इसी मीटिंग में मैं आपको करके दिखा दूं, फिर मैं इसका एक्सप्लेन जो है ना दोबारा अगली मीटिंग में फिर कर दूंगा, तो आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है? अब देखो शॉर्ट रन डायनामिक्स मैंने क्या बताया कि शॉर्ट रन जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंस में होते हैं, तो मैंने अब डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस में ले लिया। सही है? इंटरसेप्ट तो खैर डिफरेंस क्या होगा उसका ऐसे ही है। फिर अगला भी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आई हैव टू टेक इन डिफरेंस फॉर्म। ठीक है? और फिर जो मेरी स्टेप नंबर 1 की इक्वेशन थी, उसमें जो मैंने एरर टर्म मेरे पास थी, उस एरर टर्म को मैंने एक लैग करके ले, देखिएगा जरा, ये मैंने लिख दी है शॉर्ट रन जो है ना ईसीएम इक्वेशन। ईसीएम इक्वेशन में होता क्या है? ईसीएम इक्वेशन जो है जनाब आली, इट एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल। ये जो डिफरेंस में है, इनके जो कोफिशिएंट अभी हम लेंगे, स्लोप कोफिशिएंट वगैरह आएंगे, वो शॉर्ट रन बिहेवियर शो करेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग लॉन्ग रन इंफॉर्मेशन, ये जो एरर टर्म है ये ऊपर वाली इक्वेशन की है, इस इक्वेशन की है ना जो ऊपर लिखी हुई है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस इक्वेशन की है। ये इक्वेशन लॉन्ग रन इक्वेशन है क्योंकि डिफरेंस में नहीं, इसकी एरर टर्म का मैंने एक लैग लिया है। ठीक है? और ये तो ये लेवल पर है और ये दोनों डिफरेंस फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कि ये ईसीएम है। ये उस वक्त होगा जब स्टेप 1 के अंदर कोइंटीग्रेशन की इंडिकेशन हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? जी सर। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने ओहो आई हैव टू, ये तो हो जाना चाहिए।
अच्छा सॉरी, एलएस तो लिखा नहीं है जनाब अली, हम तो वो बेचारा परेशान हो गया कि करें क्या, एलएस भी लिख दिया। ठीक है, ये जो है ना ये रन हो गई, ये हमारा एरर करेक्शन इक्वेशन आ गई। बहुत ही कम टाइम है तो अब मैं काम पे जाता हूँ। डायरेक्टली यू विल चेक द कोफिशिएंट ऑफ ERR -1, जो आपकी लॉन्ग रन जो आपकी एरर टर्म का लैग है, इसका कोफिशिएंट देखें। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस देखें। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो दिस इज कंफर्मेशन ऑफ कोइंटीग्रेशन। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ कोइंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो ऑब्वियसली जो है ना कोइंटीग्रेशन कंफर्म नहीं हो रही है। तो जो फर्स्ट स्टेप में एरर करेक्शन टर्म पे आपने ADF लगाया था और वो स्टेशनरी आई थी, दैट वाज नेसेसरी कंडीशन। और ये वाला जो एरर का लैग है, अगर ये सिग्निफिकेंट आ रहा है तो ये है ना ये फुलफिल कर रहा है सफिशिएंट कंडीशन को। मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मगर मैं आपको भेज रहा हूँ, जाइएगा कहीं नहीं, ब्रेक थोड़ी देर में करेंगे, 2-3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, पानी वानी पी के आ जाइए। ठीक है।